बात नहीं ठीक है. Okay. I have not taken any chapter for revision or for explaining the topic, because today I have planned to discuss about some important question or some important topic that can be asked from you in the examination. From the point of view of examination, some questions, some topics are really very important. So today's we will discuss about that important topic or the question. You can note down in your copy. Maybe this question is asked from you, that is in the first chapter. If you want to note it down, start writing from the first chapter. Write down the first chapter. First chapter, very important topic is differences between business, profession, and employment. I have told you many times that really this question is very important. Okay, so this is a very important question in one way or other way, in the way of case study, in the way of very short answer type question, in way of a long type answer question. This question may be asked from you. Ma'am, repeat again. Question. The differences between business, profession, and employment. Differences between business, profession, and employment. Okay, so I'm not sure that these questions are coming, but these questions, as the I have seen the question paper of the last year. One day I showed the question paper to you also. Okay, in that question paper, business, profession, and employment, these three topics were asked from the students. On the basis of that question, I thought that this topic must be emphasized properly. तो तुम लोग इस चीज के लिए तैयार रहना. Differences between profession, business, and employment. Right. The second is auxiliaries to trade. Next is auxiliaries to trade. What important factors, what important bases are there which always help the commerce and the business? ठीक है, जैसे इसमें ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है. These are some of the auxiliaries to trade. Warehousing facilities है, warehousing, तो transportation, banking, warehousing, these are some of the auxiliaries to trade. Third, factors while starting a business. What factors are there which are very important? What factors are there which are very important? To start any business. Written. What factors are there which are very important to start any business? Written. Okay. Now, along with this topic, one topic is also added from this year. That is the history of commerce. History of commerce in India. Do not forget to learn that topic. That topic is also very important. You can be asked about the nature or the purposes of business. What is the historical ground? What are the historical experiences of India to start business from the ancient period? और उस समय business कैसा होता था? What was the nature of business that was being conducted in ancient period? That is also one of the important topic. But as compared to that portion, these three topics are very important. ठीक है? अच्छा, इसी में शायद नहीं, बल्कि दिया हुआ types of industry है ना, और उसमें था एनालिटिकल इंडस्ट्री वगैरह सब दिया हुआ था, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री दिया हुआ था, तो वो तुम लोग पढ़ लेना, लेकिन इस पर खास ध्यान देना. नेक्स्ट, इन द सेकंड चैप्टर, that is the forms of business organization. You can take your book also. Second is the types, forms of business organization. The first is what are the different types of partners. Right, the next, different types of partners. तुम लोगों ने पढ़ा था ना, डोरमेंट पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स बाय स्टॉपल होते हैं, एक्टिव पार्टनर्स होते हैं, नॉमिनल पार्टनर होते हैं. तो डू नॉट फॉरगेट टू लर्न दिस टाइप ऑफ पार्टनर्स बाय हार्ट.
तो टाइप्स ऑफ पार्टनर हो गया। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उसमें तुम लोगों ने पढ़ा था कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फिर उसमें फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो ये तुम लोग सारा पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज कंपेयर द स्टेटस ऑफ अ माइनर, कंपेयर द स्टेटस ऑफ अ माइनर, कंपेयर द status of a minor, minor, it means below the age of 18, below the age of 18 is called minor. Compare the status of minor in a joint Hindu family business, in a joint Hindu family business, JHF, joint Hindu family business, with that in a partnership form, with that in a partnership form. Okay, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप? व्हाट इज कॉल्ड सोल मैम प्रोप्राइटरशिप? इसका आंसर क्या होगा? इसका कंपेयर हाँ द देखो स्टेटस। हाँ सुनो बता देते हैं। पार्टनरशिप में माइनर को इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही जब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है उसमें माइनर, अगर फैमिली, ये हिंदू फैमिली का है, अगर किसी फैमिली में माइनर है, मतलब कम एज का कोई है, तो जब वो बड़ा हो जाता है, जब वो बड़ा हो गया, जब वो माइनर से वो हट जाएगा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, तो वो ऑटोमेटिकली उसका पार्ट बन जाएगा। ध्यान से सुनो, अगर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है तो उसमें अगर कोई माइनर है, कोई 14-15 साल का बच्चा है, तो अभी तक वो उसमें पार्ट नहीं लिया है, लेकिन जैसे ही वो मेजर हो जाता है, जब वो 18 ईयर्स को क्रॉस कर जाता है, तो ही कैन बी अ member of the business which is run by that joint Hindu family, ठीक है। पार्टनरशिप में तुम लोग को ध्यान होगा कि मैंने बताया था कि अगर दो पार्टनर हैं और उसमें एक पार्टनर का डेथ हो जाता है, तो जो उसका बेटा या बेटी है, तो बेटा या बेटी है, क्योंकि वो अभी केवल 11-12 साल का है, तो उसको केवल एक तरह का हम लोग पेसिव मेंबर बना लेते हैं कि हाँ वो इसमें वो पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी, उसका एसेट ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, उसके जो बड़े थे उनका डेथ हो गया है, तो उस बिजनेस में बड़े का एसेट था, उनका डेथ हो गया, तो जब उनका बच्चा अगर छोटा है तो अभी वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टनरशिप से उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। वो अभी वो पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन बहुत एक्टिवली नहीं, डिसीजन मेकिंग में उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, लेकिन जैसे ही फिर वो बड़ा हो जाता है, तो जैसे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में बच्चा जब बड़े होते हैं तो उसको ऑलरेडी मेंबर बना दिया जाता है बिजनेस का, ठीक है, ऐसे ही पार्टनरशिप में कोई छोटा बच्चा है, अगर उसके फादर का डेथ हो जाता है, तो अभी वो मेंबर तो रहेगा, लेकिन वो एक्टिव मेंबर नहीं है, वो एक्टिव मेंबर नहीं, लेकिन वो मेंबर ऑलरेडी है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में केवल फैमिली का मेंबर है, बिजनेस का मेंबर नहीं है, बिजनेस का मेंबर नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप में उसका अगर छोटा बच्चा है 11-12 साल का, तो वो ऑलरेडी छोटे से ही मेंबर रहेगा, उसको सारा इनकम दिया, पैसा दिया जाएगा, लेकिन वो एक्टिवली पार्टिसिपेट इसलिए नहीं कर रहा है बिकॉज ही और शी स्टिल इज नॉट इन अ सिचुएशन टू टेक डिसीजन। लेकिन वो जैसे ऑटोमेटिकली वो 18 साल को क्रॉस करता है, तो वो अपने फादर की तरह वो मेंबर बन जाएगा और अपने फादर के बिजनेस को पार्टनरशिप में फिर से वो पहले की तरह शुरू कर देगा, ठीक है। ये चीज है। हाँ सुनो, पार्टनरशिप में उस बच्चे का अगर मन हो, उसके फैमिली का मन हो, तो वो हट सकता है, बिजनेस में सवाल ही नहीं है हटने का, क्योंकि वो हिंदू, वो बच्चा ना नहीं बोल सकता है, तो फिलहाल वो प्रॉपर्टी में अभी हिस्सेदार वो नहीं है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होगा वो ऑटोमेटिकली पार्ट बन जाएगा, पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन पार्टनरशिप में बच्चे की फैमिली जो है, मम्मी है उसके, जो भी है, वो डिनाई करके हट सकते हैं, डिनाई करके हट सकते हैं, लेकिन इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस माइनर कैनॉट रिमूव फ्रॉम द बिजनेस, उसको हटाया नहीं जा सकता है,
और वो ना ही खुद वो हटेगा, क्योंकि उसको फैमिली का खुद का बिजनेस है, वो हट के जाएगा कहाँ। पार्टनरशिप में छोटा बच्चा है, नहीं संभाल रहा, नहीं मन है, हट सकता है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में नहीं हट सकता है, वो हमेशा पार्ट रहेगा उस फैमिली का। लेकिन पार्टनरशिप में डिपेंड्स अपॉन द डिजायर और द विल ऑफ अ माइनर चाइल्ड। बात समझ में आई उज्जवल? यस मैम। हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट लिखो तो। सोल प्रोप्राइटरशिप, मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, बी फास्ट। मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप तुम लोग को पता है ये, एंड इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, मेरिट्स और डिमेरिट्स। इस चैप्टर में बिजनेस फॉर्म का जितना भी वो ऑर्गेनाइजेशन का जो फॉर्म दिया है उसका डेफिनेशन और मेरिट डिमेरिट जरूर देखोगे, बिल्कुल। पता है क्यों? क्योंकि इसी मेरिट और डिमेरिट्स के बेसिस पर प्लस फीचर के बेसिस पे तुमसे केस स्टडी पूछा जा सकता है। याद है हाफ ईयरली एग्जाम में एक क्वेश्चन था कि टू फ्रेंड्स were the partner of the business and one friend decided to use the low quality raw material when without giving in knowledge to his friend or to his partner, he decided to use low quality of raw material. When commodity the goods have been made and it has been sold out to the consumer, then after getting harm from that commodity, when consumer wants to file a case against that particular business, can he or she file any case, any complaint against that partnership business? Do you think? याद है इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था? तो इसका आंसर है कि हाँ, दोनों पार्टनर हैं और दोनों में से एक ने धोखेबाजी से लो क्वालिटी रॉ मटेरियल को इस्तेमाल कर लिया, और जब कंज्यूमर का कंप्लेन आने लगा तो क्या कंज्यूमर कंप्लेन कर सकते हैं? जबकि वो पार्टनरशिप जो चल रहा था वो रजिस्टर्ड कंपनी नहीं थी, रजिस्टर्ड कंपनी नहीं थी। तो कैन consumer file any case against that company who has not been registered? Yes, यस मैम। consumer, yes, Right. consumer can file case against the company, because consumer can file the case whether company has been registered or not. It doesn't matter. Even consumers are not knowing whether the company is registered or not. हम लोग खुद ही जब खरीदने के लिए जाते हैं किसी कंपनी का सामान, तो हम लोग को क्या पता है कि वो registered है कि नहीं। तो consumer, as a consumer, they can file the case against that company. हाँ, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, उन दोनों में से एक ने बदमाशी किया तो दूसरा ये नहीं कह सकता है कोर्ट में वो केस नहीं कर सकता कंज्यूमर कोर्ट में कि भाई मैं तो नहीं जान रहा था, इसने बदमाशी में वो लो क्वालिटी का रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया, तो मैं तो नहीं जान रहा था। ये वो नहीं बोल सकता, क्योंकि गलती थी कि उन लोगों ने रजिस्टर्ड नहीं करवाया था। हाँ, अगर रजिस्टर्ड करवा दिया होता और फिर कंप्लेन आता तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को बोल सकता था कि रजिस्टर्ड कंपनी है, तुमने धोखा दिया, तो मैं इस केस से मैं अलग हो रहा हूँ, मैं इसमें नहीं हूँ, और ये सही है, तब सही है। तो इसका मतलब है पार्टनरशिप का जो फीचर्स होता है, जो उसका फीचर्स है, ऑन द बेसिस ऑफ द फीचर्स, on the basis of the merits and demerits, several case studies can be formed. One of the case studies you have got in your half-yearly examination. So be ready for solving the case studies based on the topics given in your book. तो किसी टॉपिक का तुम लोग फीचर्स नहीं छोड़ोगे, खासकर फीचर जैसे ई बिजनेस का फीचर है, प्रोफेशन का फीचर है, जो भी है, तुम लोग इसको फीचर को नहीं छोड़ोगे, क्योंकि उसी पर बेस्ड क्वेश्चन होता है, केस स्टडी होता है। ओके, नेक्स्ट इन थर्ड चैप्टर, थर्ड में बहुत याद करने, थर्ड में तो मुझे लग रहा है कि मैंने सेलेक्ट तो बहुत सा किया है, लेकिन उसमें एक तुम लोग लिख लो, एक लिख लो, खास तौर पे लिखो, हालांकि इंपॉर्टेंट सारा है। थर्ड में था ना वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है, पब्लिक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, तो वो सारा इंपॉर्टेंट है। सबका डेफिनेशन और फीचर देखो, डेफिनेशन, फीचर और मेरिट डिमेरिट देखोगे एकदम, क्योंकि उसी पर बेस्ड केस स्टडी आ रहा है, जान लो। हाँ, उसमें एक तुम लोग क्या पढ़ना, describe the industrial policy, write it, describe the industrial policy, describe the industrial policy of 1991, describe the industrial policy of 1991 towards the public sector,
towards the public sector. बाकी सब याद करोगे, ध्यान में रखना, बाकी सब याद करोगे, लेकिन इसको क्योंकि इसमें पता है इसके अंदर बहुत से पॉइंट्स है, ध्यान रखना इसके अंदर बहुत से पॉइंट्स दिया हुआ है, तो उस पॉइंट को याद करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, बिजनेस सर्विसेज। आई हैव सेलेक्टेड 5 क्वेश्चन. Business services. Chapter is business services. 4th chapter. Write the first. What are the features of services? What are the features of services? याद है इसमें था intangibility, याद है inconsistency, intangibility, वो सब इसमें Yes, ma'am. 5 आई दिया, हाँ 5 आई था. I don't have any book today, ठीक है, क्योंकि सारी बुक मेरी स्कूल में छूट गई है आज. तो फीचर ऑफ सर्विसेज देख लेना. नेक्स्ट, second, functions of commercial bank. It is very important. Rather, this question will be in class 12th also. ध्यान में रखो. Functions of commercial bank will be in class 12th eco book. तो तुम लोग इसको खास तौर से पढ़ोगे. What are the functions of commercial bank? जो है ना कि it accepts deposit, it extend loans. तो तुम लोग देख लेना. It transfer money. ये सब देख लेना. Next, fundamental principle of insurance. नेक्स्ट लिखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस. था ना इस पे मिटिगेशन, सबरोगेशन, अटमोस्ट फेथ, पेक्यूनरी इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये सब पॉइंट था. वो तुमको बिल्कुल पढ़ना, एकदम केस स्टडी इस पर हो सकता है, इस पर केस स्टडी बेस्ड हो सकता है. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस रिटन. Yes, ma'am. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. Types of life insurance. Write the next types of life insurance. And in this point, we have studied already 5 types. Annuity policy था उसमें, children's endowment policy था, life assurance था, endowment life assurance policy था. तो वो तुम लोग देख लेना. Joint life insurance policy था. So I think 5 types of life insurance policies were given. You have to learn all 5 policies by heart. Next is types of insurance and examine the nature. Types of insurance. Now tell me, what types of insurance are given in your book? Can you name it? Can you name them? Ma'am, fire insurance, life insurance, and Marine marine insurance. insurance. हाँ, marine insurance and fire insurance, not the life insurance. क्योंकि मैंने यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस तो पहले ही हो गया, वो तो टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस हो गया. यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, हाँ वो आ सकता है, लाइफ इंश्योरेंस भी है, मरीन इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है. तो मरीन इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस का कंपैरिजन याद है, डिफरेंस दिया हुआ है, एक पेज में पूरा कॉलम बना के दिया हुआ है. वो तुम लोग Yes, एटलीस्ट ma'am. 5 पढ़ो. Yes, 5 ma'am. नहीं, हाँ 5 नहीं, 6 पढ़ोगे, सॉरी 6 पॉइंट पढ़ोगे. 6 पॉइंट पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन मेरीन इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस. 5 याद कर लेना. नेक्स्ट चैप्टर, 5th चैप्टर, इमर्जिंग मोड्स ऑफ, इमर्जिंग था ना, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस. इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस अभी जस्ट हम लोगों ने रिवीजन उसका खत्म किया है. बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस. राइट द first question, benefits and limitation of e-business. Meaning of e-business, of course, it will be asked. Benefits of e-business, limitation of e-business and definition of e-business. Next. अच्छा, इसी में e-commerce है, e-commerce है, ठीक है. And e-commerce लिखो, meaning of e-commerce, meaning of e-commerce. Next is scope of e-business. याद है scope of e-business? याद है? C2C commerce. Yes, ma'am. B2B याद है, commerce, C2C, हाँ, B2C, इंट्रा बी कॉमर्स और इंट्रा बी कॉमर्स. मैम हो गया 4. हाँ इंट्रा बी कॉमर्स, C2C, B2B और B2C, ठीक है, याद रखना. और सुनो, इफ इन एग्जामिनेशन these 4 are asked from you, don't forget to give at least 2 example of each. Okay, try to add always practical example of every topic. It may be asked or not asked, but don't forget to add these practical examples to show that you are knowing about that content very well. So don't forget to add some extra, some surplus line, because you all are in class 11. ठीक है, 3 to 4 months
After 3 to 4 months, you all are going to be in class 12. So try to add some extra line that should be very practical and applicable. चलो ठीक है, next लिखो social responsibility, chapter number 6, social responsibility of business. 6th chapter, social responsibilities of business and business ethics. Social responsibilities of business and business ethics. First is arguments for and against, arguments for and against social responsibility, fast, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन मेरे पास प्रैक्टिस के लिए भी अभी है. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चैप्टर नंबर 6 जो है उसका आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों निभाना चाहिए, क्यों नहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहिए, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू of consumers, from the point of business, why social responsibility should be carried out, why it should not be carried out. This is the first thing. Second, causes of environmental pollution. क्या cause है? Causes of environmental pollution. Causes of environmental pollution. Third, element of business risk. Third is element of business risk. Element of business risk. और पता है क्योंकि मेरे पास आज घर में कोई भी किताब नहीं है, कोई भी किताब नहीं है, मैं बहुत सोच करके मैंने सोचा कि हाँ ये टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो मैंने सोच कर कुछ मटेरियल जमा किया है, वही मैं लिखवा रही हूँ. नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, न्यू चैप्टर, 7th चैप्टर, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस. Sources of business finance. Write the first question. What is business finance? What is business finance? Why do business need fund? Why do businessmen need fund? उसको पैसे क्यों चाहिए? Obviously to buy raw material, to buy machinery, to buy land. ठीक है, इसलिए ये तो बेसिक चीज हो गया. सेकंड लिखो, list the sources of raising long term and short term finance. लिख रहे हो शाश्वत? शाश्वत, are you writing? Yes, ma'am. हाँ Yes, ठीक है. List the sources of raising long term and short term finance. अब इसके बाद लिखो, याद है GDR और IDR? याद है? Yes, ma'am. GDR और ADR stand for? GDR stand for Global Depository Receipt. और ADR American Depository Receipt. हाँ, GBD Global Depository Receipt, GDR Global Depository Receipt, और ADR जो कि केवल अमेरिका के लिए बना, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जो कि केवल अमेरिका से ही हम लोग खरीद सकते हैं या अमेरिका को बेच सकते हैं. ये हो गया, पैसे वहां से ले सकते हैं या पैसे उसको दे सकते हैं, वो ADR हो गया अमेरिका. A स्टैंड फॉर अमेरिका, GDR, G स्टैंड फॉर ग्लोबल. ठीक है, ये हो गया. तो डिफरेंस बिटवीन GDR एंड IDR, सॉरी ADR, GDR एंड ADR, दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ लेना, कम से कम 3 पढ़ लेना, कम से कम तुम लोग 3 देख लेना. नेक्स्ट, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ पब्लिक डिपॉजिट. सबका मेरिट डिमेरिट पढ़ लेना. शेयर का लिखो, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इक्विटी शेयर, merits and demerits of retained earnings, इतना लिख लिए. डिबेंचर्स, merits and demerits of debentures, ये था. अच्छा, और मुझे जो ध्यान में आ रहा था, हाँ ये ट्रेड क्रेडिट, इसका मीनिंग, इसका फीचर, मीनिंग फीचर ऑफ ट्रेड क्रेडिट, मीनिंग एंड फीचर ऑफ ट्रेड क्रेडिट. ठीक है, फिर एक था पब्लिक डिपॉजिट, meaning and feature of public deposit, PD, public deposit, meaning and features of public deposit. ठीक है. 8th में आ जाओ. 8th में है ये 8th चैप्टर है ना, स्मॉल बिजनेस. 8th में स्मॉल बिजनेस, तो स्मॉल बिजनेस में MSME. What do you mean by micro enterprises, small enterprises एंड मीडियम एंटरप्राइजेस? इस पे पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट होता है, वो रट लोगे अच्छी तरह से. डेफिनेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस लिखो. डेफिनेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस,
definition of small enterprises, फिर definition of medium enterprises, ये लिख लो, ठीक है। अब एनसीईआरटी बुक में तुम लोग देखना, just after this topic definition of once again 3 things are given, that is definition of micro business, definition of small business, definition of medium business। मतलब जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस का डेफिनेशन है उससे अलग डेफिनेशन है माइक्रो स्मॉल और मीडियम बिजनेस का। तो एक तरफ इंटरप्राइज है, एक तरफ बिजनेस है। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस का डेफिनेशन, माइक्रो स्मॉल और बिजनेस का डेफिनेशन तुम लोग देख लेना, याद से देख लेना, ठीक है। दिस द फर्स्ट थिंग। सेकंड, लिखा तुम लोगों ने कि मैं केवल बोल दी, तुम लोग नहीं लिख पाए? मैम लिखिए। हाँ ठीक है, नेक्स्ट लिखो। What measures have been taken by the government? What measures have been taken by the government to solve the problem of finance and marketing of small industry? एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, what measures have been taken by the government? गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है? तो DIC वगैरह बनाया गया है, NSIC वगैरह बनाया गया, एक दिन उसको याद करवाएंगे अपने सामने। What measures have been taken to solve the problem of financing and marketing of small industry? मतलब गवर्नमेंट ने स्मॉल इंडस्ट्री को फाइनेंस देने के लिए, पैसा देने के लिए और मार्केटिंग को ग्रो कराने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिया है, इसको याद से पढ़ लोगे। ये केस स्टडी तो नहीं बनेगा इस पे, लेकिन इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अभी कितना टाइम बच रहा है? 8 मिनट बच रहा है, जल्दी से लिखो। What incentives are provided by the government? Next लिखो, what incentives? Question number 3. What incentives are provided by the government? What incentives are provided by the government to improve small industry? To improve small industry. Come to the next chapter, chapter number 9. Chapter number 9, internal business. Write the first. Services provided by retailers. Write fast. Services provided by retailers to wholesaler and consumer. रिटेलर्स जो है वो होलसेलर और कंज्यूमर को क्या क्या, मतलब एक दाएं होता है एक बाएं होता है, ठीक है। दाएं तरफ होलसेलर है, बाएं तरफ कंज्यूमर है, बीच में रिटेलर होता है। तो व्हाट टाइप ऑफ फैसिलिटीज आर गिवन बाय रिटेलर्स टू द होलसेलर एंड टू द कंज्यूमर बोथ, ठीक है। अब आ जाओ, नेक्स्ट लिखो। व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज आर, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर provided by wholesalers to manufacturers and retailers. ये मेन हो गया। इससे अलावा मुझे याद है कि बुक में शायद एक टॉपिक एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है, शायद वो है कि मैन्युफैक्चरर होलसेलर को कैसे हेल्प करता है, वो भी एक पॉइंट है। तो कल भी हम लोग बात करेंगे इस पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, डिफरेंशिएट बिटवीन, नेक्स्ट लिखो, डिफरेंशिएट बिटवीन single line store and specialty store. Differences between single line store and specialty store. Single line store and specialty store. और लास्ट है features of departmental store, chain store. Features of departmental store, supermarket. Features of departmental store,
सुपरमार्केट एंड चेन स्टोर पढ़ा चुके हैं इसको, रिवीजन इसका जल्दी शुरू करेंगे हम, 2-3 दिन बाद इसका भी रिवीजन किया जाएगा। फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट एंड चेन स्टोर, ठीक है। लास्ट आ जाओ इंटरनेशनल बिजनेस, चैप्टर नंबर 10 इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें तो सारा चीज खत्म है, कुछ भी नहीं है इसमें। डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल बिजनेस, डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें भी एक ही लिखो, मुझे भी एक ही ध्यान में आ रहा है, एक्चुअली इसमें सारा टॉपिक तो डिलीटेड ही है, बचा कहाँ कुछ। लिख लिए तुम लोग इतना सारा? Okay, only 5 minutes are left. Now, children, I want to share very important thing with all of you. If you are asked, okay, stop writing. Stop writing. Now, listen carefully what I'm going to share with all of you. Case studies have been given so much weightage from this year, okay, in every subject. Rather, in maths also, case studies have been included in physics, in chemistry, in eco, in accountancy, in BST. So, in every subject, case studies type of questions are focused to a large extent. Okay, you all have to apply your own mind, not of others' mind. Okay, you all have to apply your own mind to write the answer, because you will not get its answer in any of the book, because case studies are the applicable or application based question which is not found in any book. किसी बुक में तुमको ये नहीं हो सकता है कि एक केस स्टडी दिया हुआ हो और तुम उसको रट लिए और एग्जाम में आके तुमने उसको लिख दिया। जैसे व्हाट डू यू मीन बाय डिपार्टमेंटल स्टोर, ये तुमको हर किताब में मिल जाएगा, लेकिन अगर केस स्टडी दे दे तो तुमको उसको कैसे सॉल्व करना है, मैं ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज केस स्टडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल सब्जेक्ट्स, इफ यू वांट टू गेट फुल मार्क्स और वेरी गुड मार्क्स, डू नॉट फॉरगेट टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस फर्स्ट ऑफ ऑल। अब सोचोगे मैं तो बहुत बड़ी बात बोलती भाई, क्लास 11th में हो तो सारे चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लो, पूरे चैप्टर को, 10 चैप्टर का एक पेज पूरा पढ़ लेना। टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास टाइम भी तो है घर में, उसको पढ़ लोगे। पहली बात ये, ठीक है। तो कंप्लीट लिखो पहले इसको, कंप्लीट द एंटायर सिलेबस, कंप्लीट द एंटायर चैप्टर, कंप्लीट द एंटायर चैप्टर इज द फर्स्ट टिप्स टू सॉल्व केस स्टडी। पहला ये हो गया, ठीक है। पहला है कंप्लीट कोर्स। सेकंड है साइकोलॉजिकल बैरियर, मैंने कुछ तुम लोगों के लिए कलेक्ट किया है। सेकंड है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल स्पेलिंग है पी से स्टार्ट होता है, PSY, साइकोलॉजिकल बैरियर। अब इसका मतलब पता है क्या, तुम जैसे केस स्टडी देखते हो ना, you totally become stuck to the question. Oh my God, what type of question is this? I haven't studied in any of the chapter. I haven't studied in any of the book. What is the meaning of the case study? तुम जैसे तुम सिचुएशन को पढ़ोगे तो तुमको लगेगा अरे किस चैप्टर से पूछा है ये, क्या किया है। तो पहले अपने माइंड सेट को चेंज करो। केस स्टडी तुम्हारे पढ़े पढ़ाए टॉपिक से ही आता है, ये तुम्हारा फॉल्ट है कि तुम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो कि आखिर ये जो स्टोरी दिया हुआ है ये उसका जिस्ट पहले निकालो, पहले पूरा पढ़ लो, जिस्ट निकालो, फिर सोचो, तुम उसको अप्लाई करो प्रैक्टिकल लाइफ से, इमीडिएटली तुमको आंसर मिल जाएगा। और एक बार ध्यान से सुनो, कोई जरूरी नहीं है कि तुम बुकिश वाला आंसर ही लिखो, बुकिश आंसर लिखो, कोई जरूरी नहीं है। प्रैक्टिकल बेस तुम्हारा आंसर होगा। If it is right, then I will give you full marks. ध्यान में रखना। ओके, तो ठीक है। इसके बाद है थर्ड है ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम बॉटम। सबसे अच्छा ये है, केस स्टडी में एक सिचुएशन होगा, उसका 2 क्वेश्चन होगा या 3 क्वेश्चन होगा, जो भी होगा। केस स्टडी जो ऊपर जो स्टोरी होता है ना, कि सपोज ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, पार्टनरशिप में एक ने धोखा दे दिया, जो भी स्टोरी होगा उसको छोड़ दोगे। क्या करोगे ना, उसके क्वेश्चन को पहले पढ़ना, उसको छोड़ देना, पहले पढ़ना ही मत, उसको हटाओ। उसको क्या करना, उसको पार्ट पहले पढ़ लेना। जब पार्ट पढ़ोगे ना तो उसमें अगर मान लो आएगा विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज दिस, अगर ये वर्ड आ गया तो समझ लो इकोनॉमिक एक्टिविटी टॉपिक इज गिवन इन द फर्स्ट चैप्टर। Economic activity, this topic is given in the first chapter of class 11th BST book. तो अब जब क्वेश्चन पढ़ के तुम्हारा दिमाग तो चला गया फर्स्ट चैप्टर में,
अब तुम केस स्टडी पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। तुम जैसे केस स्टडी पढ़ते हो ना, तो तुमको उसी चैप्टर से तुमको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। पढ़ के पता चला अच्छा ये इकोनॉमिक एक्टिविटी तो फर्स्ट चैप्टर का है, फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है बिजनेस का मीनिंग, प्रोफेशन का मीनिंग, एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग दिया हुआ है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट दिया हुआ है। तो उसका आंसर तुम जो रटे हुए होगे फर्स्ट चैप्टर एग्जाम के लिए, उसी में से उसका आंसर लिख देना। तो 90% केस स्टडी ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। बात समझ में आई? 90% केस स्टडीज ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। कैसे? उसका पार्ट पहले पढ़ा जाता है, स्टोरी बाद में पढ़ा जाता है। ध्यान में रखना इस चीज को। क्लियर? मैंने 3 चीज बता दिया। फिर है सिंपल चीज है, बहुत साइलेंट माइंड से उसको पढ़ो, बहुत क्वाइट माइंड से पढ़ो, शांत दिमाग से पढ़ो, हड़बड़ा के नहीं पढ़ोगे। अरे क्या दिया हुआ, क्या दिया, दाएं देखे बाएं देखे। अगर ऑफलाइन एग्जाम हुआ तो क्या करोगे? दाएं देखोगे उसको भी नहीं आ रहा है, बाएं देखे उसको भी नहीं आ रहा है, तो क्या करोगे? अपने दिमाग पर रिलाई करना सीखो, ठीक है। और एक लास्ट